السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ تلنگانہ کے کھمم ضلع سے تعلق رکھنے والے پدم شری ایوارڈ یافتہ ون جیوی رامیا دل کا دورہ پڑنے سے چل بسے۔ رامیا جو پودوں سے بے حد محبت رکھتے تھے، انہوں نے اپنا لقب ہی ون جیوی درختوں کا دوست رکھ لیا تھا۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی درخت لگانے اور ان کی دیکھ بھال میں گزار دی۔ ون جیوی رامیا کا تعلق ضلع کھمم کے ریڈی پلی گاؤں سے تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 1 کروڑ سے زیادہ پودے لگا کر ایک نئی تاریخ رقم کی۔ ان کی اس بے مثال خدمت کے اعتراف میں انہیں 2017 میں پدم شری ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ ایفیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ ورنگل ریاست تلنگانہ میں ایک طرف وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کہہ رہے کہ نوکریوں کی نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں، تو وہیں دوسری طرف بے روزگار نوجوان روزگار کے لیے جاب میلوں کا رخ کر رہے، جس کے نتیجے میں بدنظمی اور حادثات رونما ہو رہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ ورنگل شہر میں دیکھنے کو ملا، جہاں MK نائیڈو کنونشن ہال میں منعقدہ میگا جاب میلے میں ہزاروں بے روزگار نوجوان شرکت کے لیے پہنچے۔ لوگوں کی تعداد غیر متوقع طور پر زیادہ ہونے کی وجہ سے کنونشن ہال کے مین گیٹ پر شدید بھگدڑ مچ گئی۔ اس ہجوم کے دباؤ سے ہال کے شیشے ٹوٹ گئے اور 3 خواتین زخمی ہو گئیں۔ زخمیوں کو فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ خوش قسمتی سے کسی کی حالت نازک نہیں بتائی جا رہی ہے۔ اس جاب میلے کا ریاستی وزراء کنڈا سریکھا اور ریسی تکا نے افتتاح کیا تھا، لیکن اس واقعے نے حکومتی انتظامات پر سوالیہ نشان کھڑے کر دیے۔ مقامی لوگوں اور متاثرین کا کہنا ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر جاب میلہ منعقد کرتے وقت مناسب سیکیورٹی اور انتظامات ہونے چاہیے تھے۔ اس کے علاوہ عوامی رد عمل میں کچھ افراد نے کہا ہے کہ جب حکومت نوکریوں کی فراہمی کے لیے سنجیدہ ہے تو ایسے میلوں میں بدنظمی نہیں ہونی چاہیے۔ بعض نے سوشل میڈیا پر سوال اٹھایا کہ ایک طرف وزیر اعلیٰ کہہ رہے کہ نوکریوں کے لیے نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں، تو دوسری طرف ہزاروں نوجوان روزگار کے لیے ترس رہے۔ عادل آباد پولیس نے 4 ماہ قبل گیس کٹر کے ذریعے بینک ڈکیتی کی ناکام کوشش کرنے والے 9 چوروں کے گروہ سے 3 چوروں کو گرفتار کر لیا۔ ضلع SP عادل آباد اکھل مہاجن IPS نے عادل آباد ضلع مستقل کے پولیس ہیڈ کوارٹر میں منعقدہ ایک پر ہجوم میڈیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیس کی تفصیلات سے میڈیا کو واقف کروایا۔ انہوں نے بتایا کہ مجرموں نے 12 اور 13 دسمبر 2024 کی درمیانی رات عادل آباد دیہی پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع رمائی گاؤں کے تلنگانہ گرامینا بینک کی پچھلی دیوار میں سوراخ کر کے بینک لوٹنے کی کوشش کی۔ سوراخ کرنے کے بعد ایک ملزم اس سوراخ سے بینک میں داخل ہوا اور ہیومن موشن سینسر الارم سائرن بجنے پر ملزمان گھبرا کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ اطلاع ملنے پر اس وقت کے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس عادل آباد نے جائے واردات کا دورہ کیا اور پولیس نے ایک کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کیا۔ عادل آباد ضلع SP کے طور پر جائزہ حاصل کرنے کے بعد ضلع SP اکھل مہاجن IPS نے اس معاملے کو چیلنج کے طور پر لیا اور عادل آباد DSP جیون ریڈی کی قیادت میں سرکل انسپیکٹرز عادل آباد SI آف پولیس اور CCS کے عملے پر مشتمل ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی۔ ٹیکنیکل ایویڈنس کی بنیاد پر کامیاب اور مؤثر کاوشوں کے نتیجے میں پولیس نے 3 مجرموں کو گرفتار کرتے ہوئے جرم میں ارتکاب کے لیے استعمال کیے گئے گیس سلنڈر، آکسیجن سلنڈر، پائپ کے ساتھ گیس کٹر اور ایک سبل ضبط کیا۔ انہوں نے ملزمان کی تفصیلات سے واقف کرواتے ہوئے بتایا کہ اس کیس کے اہم ماسٹر مائنڈ سپاری قتل کیس کے ملزم A1 کے RK کالونی عادل آباد کا ساکن 32 سالہ چوہان روی ولت بابن، A2 سکھدیو سنی اور A4 گووند کارتک فی الحال مختلف جرائم میں گرفتار ہو کر جیل میں بند ہیں۔ تلنگانہ گرامین بینک میں پیچھے کی دیوار توڑ کے آکسیجن سلنڈر اور کرو بار ہتھوڑا لے کر انہوں نے توڑ کے اندر جانے کی کوشش کی۔ اندر جاتے ہی الارم بجنے کی وجہ سے وہ ناکام ہو گئے۔
जिसकी वजह से वहाँ से वो लोग भाग गए। तो हमारी पूरी टीम, CCS का टीम और लोकल DSP का टीम 3 महीने से इसी कार्रवाई में लगे हुए थे। उसी में कुछ टेक्निकल एविडेंसेस की वजह से आज 3 लोगों को पकड़ा। 3 लोग में कुंचाला साई कुमार, गोंडे अशोक और मिनुकू राजेश्वर, ये तीनों ने अपना अटेम्प्ट जो ये किया वो कबूल कर लिया। इसके अलावा 6 लोग और इन्होंने बताया कि ये 6 लोग भी हमारे साथ पार्टिसिपेट किए। गुड़ी हथनूर में एक ढाबा में बैठ के हम लोगों ने पूरा प्लान किया कि कैसे करेंगे। वहाँ से इनका मेन लीडर चवन रवि जो पूरा कंस्पायर किया, उसके ऊपर ऑलरेडी 18 केसेस है, DC शीट है। बाकी भी उसका PA जो सन्नी है, ये लोग ऑलरेडी जेल में हैं। अभी 3 लोग पकड़ लिए, 3 लोग जेल में हैं, 3 लोग एब्सकॉन्डिंग हैं। उनको भी तुरंत पकड़ के और भी कुछ चोरी की। दिल्ली NCR में गुज़िश्ता 2 दिनों से मौसम का हाल बहुत अजीब नजर आ रहा। कहीं तेज आंधी देखने को मिल रही तो कहीं बारिश हो रही। धूल भरी आंधी ने तो सड़क पर गाड़ी चलाना मुश्किल कर रखा है। नोएडा, गाजियाबाद समेत मगरबी UP के कई अजला में धूल भरी आंधी और बारिश हुई। वहीं देर शाम दिल्ली NCR में तेज आंधी के बाद जोरदार बारिश का नज़ारा देखने को मिला। इस आंधी और बारिश में कई इलाकों में दरख्त गिर गए। सड़क पर ट्रैफिक पुलिस को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि गिरे हुए दरख्त को हटाना एक अलग मसला था। दिल्ली में लोधी रोड पर सड़क के किनारे लगे सैकड़ों दरख्त गिरने की खबरें सामने आ रही। पुराने और बड़े दरख्त तेज हवा का मुकाबला नहीं कर सके और टूट गए। लोधी थाना के एक पुलिस एहलकार ने भी बताया कि कई मकामात पर दरख्त गिरने की इत्तला मौसूल हुई। एक जगह पर पैदल चल रहे शख्स के ऊपर दरख्त गिर गया, जिससे वो जख्मी हो गया। उसे फौरी तौर पर अस्पताल में दाखिल कराया गया। दूसरी तरफ हरियाणा के गुरुग्राम में भी तेज हवाओं की वजह से हादसा सरजद हुआ। बताया जा रहा है कि एक चलती हुई कार के ऊपर नेशनल हाईवे अथॉरिटी का साइन बोर्ड गिर गया। इस हादसे में गाड़ी तो चिकनाचूर हो गई, इसमें सवार शख्स भी बुरी तरह जख्मी हो गया। जख्मी शख्स को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में दाखिल कराया गया। फिलहाल उसकी शनाख्त नहीं हो सकी। झारखंड में कांग्रेस पार्टी 14 अप्रैल को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर एक खसूसी प्रोग्राम के तहत इंसानी जंजीर बनाएगी। पार्टी के रियासती सदर केशु महत्व कमलेश ने बताया कि ये इंसानी जंजीर रांची के अंबेडकर चौक से राजेंद्र चौक तक बनाई जाएगी। इस दौरान शिरका के हाथों में आइन हिंद की नकुल और बाबा साहेब के कटआउट्स होंगे। केशु महत्व ने इल्जाम लगाया कि मरकज की NDA हुकूमत के बुनियादी उसूलों को खत्म करने की कोशिश कर रही, जिसका मकसद अवाम को बेदार करना और बीजेपी के आइन मुखालिफ सरगर्मियों को बेनकाब करना है। इस सिलसिले में तमाम अजला से भी इसी तर्ज के प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए पार्टी की रियासती और जिले सतह की यूनिटों, मुहाजों के ओहदेदारान, मेंबरान असम्बली और मुख्तलिफ बोर्ड्स व कमीशंस के सरबराहों से मशावरत की गई है। लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने के बाद मुतअद्दिद शोबे हयात से वाबस्ता अफराद से मुलाकात करते रहे। इसी ज़िमन में उन्होंने टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के मैदान में काम करने वाले एक बाहुनर नौजवान विक्की से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने विक्की के काम, उसके चैलेंजेस और हुनरमंदों की जिंदगियों की हकीकत पर तफसील से बात की। विक्की ने राहुल गांधी को बताया कि उसने किस तरह अपने हुनर और मेहनत के सहारे एक छोटे पैमाने पर कारोबार शुरू किया, जो अब एक बाकायदा फैक्ट्री की शक्ल इख्तियार कर चुका है। विक्की की फैक्ट्री में कारीगर दिन रात मेहनत करते हैं, 12-12 घंटे तक काम करते हैं और सुई धागे से ऐसा काम तख्लीक करते हैं जो किसी जादू से कम नहीं। मगर अफसोस, जैसा कि विक्की ने कहा, हुनर की सच में कोई कदर नहीं। राहुल गांधी ने मुलाकात के बाद कहा, मैंने आज तक टेक्सटाइल डिजाइन के शोबे में किसी OBC शख्स को टॉप पर नहीं देखा। ये एक तल्ख हकीकत है। न सिर्फ टेक्सटाइल बल्कि दीगर सनतों में भी बहुजन तबके को ना तो सही नुमाइंदगी हासिल है, ना तालीम तक रसाई और ना ही उनके लिए कोई मजबूत नेटवर्क मौजूद है। उन्होंने मजीद कहा, विक्की जैसे नौजवानों से मिलना मेरे लिए सीखने का मौका होता है। मैं उनके काम को समझना चाहता हूं ताकि दुनिया को बताया जा सके कि हिंदुस्तानी नौजवानों में गैर मामूली सलाहियत है, लेकिन वो एक ऐसे निजाम में जकड़े हुए हैं जो उन्हें आगे बढ़ने नहीं देता।
सुबह से लेकर दोपहर के दरमियान पाकिस्तान और ताजिकिस्तान समेत कम से कम 5 ममालिक में जलजले के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इन जलजलों की शिद्दत 4 से लेकर 6.5 तक दर्ज की गई। सबसे तेज झटका टोंगा में महसूस किया गया, जहां शिद्दत 6.5 थी। हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर में भी जलजला आया, जिसने लोगों को खौफ व दहशत में डाल दिया। लोग घरों से बाहर निकल गए और किसी अनहोनी की फिक्र में काफी देर तक बाहर ही खड़े रहे। राजौरी और पूंछ में बेशतर लोग घरों से निकलकर खाली मकामात पर पहुंच गए थे। हालांकि किसी जानी व माली नुकसान की इतला भी मौसूल नहीं हुई है। लद्दाख में कुछ मकामात पर जलजले के झटके तेज थे। यहाँ रिक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 5.2 बताई गई। पाकिस्तान में जलजले की शिद्दत 5.3 दर्ज की गई। इस जलजले से कई इलाकों में अफरा तफरी फैल गई। जलजले के झटके महसूस होते ही लोग तेजी से घरों के बाहर निकले। कुछ इलाकों में तो लोग चीखते हुए खुले मैदानों की तरफ भागते नजर आए। पाकिस्तान के शुमाल मगरिबी इलाके में जलजले का असर ज्यादा था, लेकिन यहाँ से भी किसी जानी नुकसान की खबर सामने नहीं आई। ताजिकिस्तान में रिक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 4.2 बताई जाती है। यहाँ जलजला जमीन से 110 किलोमीटर की गहराई में आया था। अमेरिका ने तस्दीक की है कि ईरान से बराह रास्त मज़ाकिरात ओमान में होंगे। हालांकि तेहरान इन मज़ाकिरात को बिलावास्ता करार दे चुका है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने सहाफ़ियों को बताया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप बराह रास्त सिफारतकारी पर यकीन रखते हैं और ये बातचीत ईरानी हुकाम के साथ बराह रास्त होगी। उन्होंने कहा, मैं चाहती हूँ कि ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो कि ये ईरानियों के साथ बराह रास्त मज़ाकिरात होंगे। सदर ट्रंप एक ही कमरे में बैठकर बराह रास्त बात करने को तरजीह देते हैं। तर्जुमान ने कहा है कि ईरान को एटमी हथियार हासिल करने से रोकने के लिए तमाम ऑप्शंस मेज पर मौजूद हैं। सदर ट्रंप इस बात पर यकीन रखते हैं कि सिफारतकारी से मसला हल हो, लेकिन अगर ऐसा मुमकिन नहीं हो तो दीगर तमाम ऑप्शंस भी मौजूद हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि ईरान को फैसला करना होगा कि वो सदर ट्रंप के पेशकश कबूल करते हैं या संगीन नताइज के लिए तैयार हो जाएं। सदर का पैगाम वाज़ेह है, ईरान कभी एटमी हथियार हासिल ना करे। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.